میں شکر گزار ہوں تمام گیتوں کے لیے جو ابھی گائے گئے، جس میں ہم سب کو یہ بات باور کروائی گئی کہ اس زمین پر ہم عارضی طور پر ہیں اور یہ عارضی قیام گاہ ہے، یہاں پر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 21 خدا ان کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ ایک بڑی خوبصورت آیت اس خط کے اندر موجود ہے جو آسمانی زندگی اور زمینی زندگی کا بیان کرتی ہے، اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ آمین۔ کیا آپ اس آیت کو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ آمین۔ پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمین پر ہمارے زندہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند کے لیے جئیں، ہم خداوند کے لیے زندگی بسر کریں، ہم اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اور وہ لوگ جو اس زمین پر مسیح کے لیے زندہ رہتے ہیں، وہ جب اس زمین سے کوچ کرتے ہیں تو ان کے لیے نفع کی بات ہے۔ جیسا کہ بہن کے تعلق سے ہم نے سنا کہ انہوں نے اس زمین سے کوچ کرنے سے کچھ دیر پہلے، حالانکہ وہ بیمار تھی، لیکن جب انہوں نے خدا کا کلام سنا، انہوں نے ایمان سے خدا کے کلام کو ریسیو کیا، قبول کیا، اور انہوں نے یہ مناسب جانا کہ وہ اپنی زندگی خداوند کو دیں، وہ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں اور پورے طور سے اپنا آپ خداوند کے سپرد کر دیں۔ اور جب انہوں نے بپتسمہ لیا، توبہ کی، نجات پائی، تو کچھ دنوں کے بعد وہ اس زمین کو چھوڑ گئیں اور نفع کی حالت میں آسمان پر پہنچے۔ آمین۔ آج سے 20 سال پہلے میرے والدین کی ایک ہی سال کے اندر ڈیتھ ہوئی اور میرے والدین اس زمین سے کوچ کر گئے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، میری عمر اس وقت 19 برس تھی، اور لائف کے اوپر بڑی پرابلمز تھی، بڑی پریشانیاں تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کو پولیو تھا، وہ میرے سے 3 سال چھوٹی تھی، ہم دونوں بہن بھائی رہ گئے۔ اور میری جو بہن تھی وہ میرے تایا جی کے پاس چلی گئی اور میں اپنے ماموں کے پاس چلا گیا، اور اس وقت تک مجھے مسیحی کا مطلب معلوم نہیں تھا۔ ہمیں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، میرے ساتھ مسیح کا نام جڑا ہوا ہے، یعقوب مسیح، بوٹا مسیح، مہنگا مسیح، دانیل مسیح، یوحنا مسیح، بہت سے نام ہوتے ہیں، یہی نام عام طور پر رکھے جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ چونکہ مسیح کا نام لگا ہے اس لیے میں مسیحی ہوں، میں اتوار کو کبھی کبھار چرچ بھی چلا جاتا ہوں، میں مسیحی ہوں۔ اگر کوئی پادری ہمارے گھر میں یا فادر ہمارے گھر میں دعا کرنے کے لیے آئیں تو میں بڑے عزت اور احترام سے بیٹھ جاتا ہوں، میں مسیحی ہوں۔ لیکن 20 سال پہلے میرا یہ خیال تھا جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور شاید یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہو کہ اگر میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں تو میں مسیحی ہوں۔ چند دن پہلے فیصل آباد سے ایک ٹریفک وارڈن پکڑا گیا جی، وہ ٹریفک وارڈن نہیں تھا، لیکن اس نے کہیں سے وردی لے لی اور وہ لوگوں کے چلان کرتا تھا اور لوگوں سے پیسے لے لیتا تھا۔ بظاہر تو وہ ٹریفک وارڈن نظر آتا تھا، لیکن حکومت کے کھاتوں میں اس کا کوئی نام نہیں تھا، اور چند دنوں کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا، اب وہ جیل میں ہے۔ اسی طرح بہت سے مسیحی جو نامی مسیحی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں، اصل میں وہ مسیحی نہیں ہے۔ مسیحی وہ ہے جس نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل چکا ہے، جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ کروں گا وہ خداوند کے لیے کروں گا، جس نے اپنا آپ ٹوٹلی طور پر خداوند کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ مسیحی وہ ہے، وہ شخص مسیحی نہیں جو سنڈے کو چرچ چلا جاتا ہے، اس کے بعد شراب بھی پیتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، گالیاں بھی نکالتا ہے، بیوی کو مارتا بھی ہے، محلے میں لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، ہر قسم کے برے کام بھی اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ ایسا شخص مسیحی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسیحی سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا رہے، لیکن مسیحی وہ ہے جس نے اپنا آپ خداوند کو دے دیا ہے۔ پولس کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں کلاسیکل سنگر بن رہا تھا اور میں کلاسیکل سنگنگ کرتا بھی تھا، محفلوں میں جا کے غزلیں بھی گاتا تھا اور پروگرام بھی کرتا تھا کانسرٹس میں۔ لیکن میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ماں باپ 20 سال پہلے 98 میں فوت ہو گئے تھے، تو میرے والد صاحب کو ٹی بی ہو گئی تھی۔
टीबी हो गई थी मेरे वालिद साहब को, और मेरे वालिद साहब के निगलने की सलाहियत खत्म हो गई थी, वो कुछ भी निगल नहीं सकते थे। और हुआ ये कि अपने वालिद साहब के साथ रहते रहते वो टीबी के जरासीम मेरे अंदर भी मुंतकिल हो गए। और मेरी वालदा तो पहले मर चुकी थी, मेरी वालदा के मरने के 7 महीने के बाद मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई। और मैंने आपको ये भी बताया कि मेरी बहन थी छोटी, उसको पोलियो था, वो चल फिर नहीं सकती थी। और मेरे लिए ये बड़े दुख की बात थी कि अब हमारे माँ बाप नहीं रहे, और उससे भी बड़ा सितम ये था कि हम दोनों बहन भाई भी एक दूसरे से अलग हो गए। मेरी बहन जो थी वो अपने तायाबू के पास चली गई और मैं मामू के पास रह गया, और वो जरासीम मेरे अंदर बढ़ते रहे और मुझे मुस्तकिल बुखार रहने लगा, और मेरा बुखार टूटता नहीं था। हर वक्त मैं बुखार की हालत में रहता था, और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा जिस्म सुकड़ने लगा और मेरी हालत गैर होने लगी, और मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहती थी, और मेरा सांस सुकड़ चुका था, और मेरे मुंह से खून की उल्टियां आती थी। ऐसी हालत में मियां मीर कॉलोनी में एक छोटा सा कमरा था, बैठक थी, वहां पर मैं जाकर रहने लगा। और मैंने एक दिन फैसला किया कि इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि मैं ट्रेन के नीचे आऊं और मैं अपनी जिंदगी का खात्मा करूं। लेकिन मैं जितने साल भी जिंदा रहा हूं, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं खुदावंद को जानता नहीं था, और मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किलात का शिकार थी। वालिदैन मर चुके हैं, नौकरी कोई नहीं है, और तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मौत सामने खड़ी है। एक डॉक्टर के पास में गया तो उसने जब मेरा चेकअप किया, उसने कहा बेटा आपकी आंतों में सुराख हैं, आपके फेफड़े टोटली तौर पर गल चुके हैं, आप इतनी देर कहां रहे, आप मेरे पास क्यों नहीं आए, आपने किसी अच्छे डॉक्टर को चेक क्यों नहीं करवाया। तो मैं क्या करता था, मैं फ्री डिस्पेंसरियों में जाता था, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। फ्री डिस्पेंसरियों में जाना, उन्होंने मुझे बुखार की दवाई दे देनी, वक्ती तौर पे मैंने दवाई खानी, मेरा बुखार उतर जाना। लेकिन चूंकि मेरी बीमारी कुछ और थी, इसलिए मेरी बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती गई, और मैं बीमार से बीमार तर होता गया, और यहां तक हालत आ गई कि उसने कहा कि अब आप बिस्तरे मर्ग पर हैं, समझ लें आप चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि जब हम आपको दवाई भी देंगे वो दवाई आप पर असरअंदाज नहीं होगी। मैं बहुत डिसाइड होकर उसी क्लिनिक से बाहर निकला। याद रखें, वो लोग जो खुदावंद से दूर हैं, जो खुदावंद को नहीं जानते, जिनके चेहरे पर खुदा का नूर नहीं चमका अब तक, जो खुदा के कलाम से खाली हैं, खुदा से दूर हैं, जो अपने आप को खुदावंद के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी जिंदगी के अंदर बड़ा दुख है। इस किताब में लिखा है, तू सदा लुटता रहेगा, तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा, तू बाहर जाते हुए लानती होगा, तू अंदर आते हुए लानती होगा, तेरा ठोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती होंगे। जिस शख्स पर यीशु का खून नहीं वो लानत के नीचे, लेकिन जिस पर यीशु का खून है, जिस पर यीशु का हाथ है, वो बरकत के नीचे। आमीन। और मैं लानत के नीचे था, मैं बरकत के नीचे नहीं था, क्योंकि यीशु का हाथ मुझ पर नहीं था। और मैंने उस रेलवे ट्रैक पर रात को 1:30 बजे जनवरी 99 में फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगा, मैं अपने आप को मार लूंगा, क्योंकि वो तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। और उस रात 1:30 बजे शदीद धुंध के अंदर मैं रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया, और मैं रो रहा था, और मैं कांप रहा था, सर्दी से बुरा हाल था मेरा, और मैं ये दुआ कर रहा था कि कब ट्रेन आए और वो मुझे काट कर गुजर जाए। आपने बहुत से लोगों को खुदकुशियां करते हुए देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा वो अपने बच्चों के गले काट देते हैं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा वो नामीद होके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कूद जाते हैं, समुद्र में डूबकर खुदकुशी कर लेते हैं। वो नामीद हो चुके होते हैं, उनके पास जीने की उम्मीद नहीं होती। और वो लोग जिनके पास यीशु नहीं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जिनके पास यीशु है, वो हर किस्म की नाउमीदी के अंदर भी उम्मीद को पा लेते हैं, क्योंकि उम्मीद का सर चश्मा उनके अंदर रहता है। हालेलुया। और उस रेलवे ट्रैक पर मैं रो रहा था कि कब ट्रेन आए और मैं मर जाऊं, और मैं खुदा से गिला कर रहा था, ऐ खुदावंद तूने मुझे क्या दिया, ऐ खुदावंद मेरे वालिदैन मर गए, हमने गुर्बत देखी, हमने परेशानी देखी, हमने मुसीबत देखी, हमारी जिंदगी में एक भी पल खुशी का ना आया, तूने हमें क्या दिया है। एक हल्की सी आवाज मेरे अंदर से उठने लगी, उस आवाज ने मुझसे कलाम करना शुरू किया। उसने कहा, बेटे तू मुझसे गिला कर रहा है, लेकिन जरा अपनी जिंदगी पर गौर कर, क्या तू कभी मेरे पास आया, क्या कभी तू मेरे हुजूर झुका, क्या कभी तूने मेरा कलाम पढ़ा, क्या कभी तूने खादमों की बात मानी, क्या कभी तूने अपनी जिंदगी मुझे दी, क्या तेरा मेरे से कोई ताल्लुक है जो तू मुझसे इतना गिले कर रहा है। और मैं शर्मिंदा हुआ, मैं रोने लगा, मुझे एहसास हुआ कि वाकई ये आवाज जो कुछ मुझसे कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। और आप जानते हैं कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो खुदा के पाक रूह की आवाज थी। और वो मुझे कन्विंस करने लगी आवाज। उसने कहा, तू तौबा कर, आज भी तेरे पास उम्मीद है, अगर तू तौबा करे तो बच जाएगा, तेरी जिंदगी बच जाएगी, तू हलाकत से बच जाएगा। लेकिन मैं कहता रहा, नहीं मैं नहीं बच सकता, खुदा मुझे माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार शख्स। शैतान पहले तो हमें गुनाह करने पे उकसाता रहता है,
उकसाता रहता है, हम उसके कहने पर गुनाह करते रहते हैं, गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं। हम उसके पहले झूठ का यकीन करते हैं कि गुनाह करता जा, सब करते हैं, तू भी कर ले। दूसरा झूठ वो ये बोलता है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, तू माफ नहीं हो सकता। अगर आपने पहले झूठ का यकीन कर लिया है शैतान का, तो दूसरे झूठ का यकीन मत करें कि खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। अगर उसने आपको माफ ना करना होता तो वो आसमान छोड़कर जमीन पर क्यों आया? उसने आपके लिए कांटों का ताज क्यों पहना? उसने अपने हाथों और पैरों के अंदर कील क्यों ठुकवाए? उसने अपनी पीठ के ऊपर रेखारियां क्यों बनवाई? उसने अपने मुंह पर क्यों थुकवाया? उसकी दाढ़ी क्यों नोची गई? फकत इसलिए ताकि मैं और आप निजात पाएं और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। उस रात मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद वाकई अगर तू मुझ जैसे गुनाहगार को माफ कर सकता है तो आज रात मुझ पर मेहरबानी कर, मुझे माफ कर। मैंने आंसुओं के साथ तौबा की। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर ताकत तो वैसे नहीं थी, खून की उल्टियां कर करके मैं खत्म हो चुका था और सर्दी ने मुझे बिल्कुल शल कर दिया था। लेकिन जब मैं आंसुओं के साथ रो रहा था, किसी ने यहां से मेरे मुंह को पकड़ा और पीछे की तरफ कर दिया, और जब मैंने पीछे देखा तो मेरी बैक साइड पे एक बहुत बड़ा रोशनी का सर्कल था। उस सर्कल के अंदर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, और खुदावंद यीशु मसीह उस सर्कल में से चलते हुए मेरे पास आ गए, बिल्कुल मेरे सर पे आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटा शहजाद, तूने जिंदगी में पहली बार दिल से मुझे पुकारा है, मैं तेरा खुदावंद हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, और आज मैं तुझे शिफा देता हूं, मैं तुझे जिंदगी देता हूं, उठ के खड़ा हो जा, और मैंने तुझे अपना कलाम सुनाने के लिए मुकर्रर किया है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और मैं अगले दिन उस डॉक्टर के पास पहुंचा जिसने मुझे कहा था कि आपकी आंतों में सुराख है, आपके फेफड़े खत्म हो चुके हैं, आप चंद दिन के बाद मर जाएंगे। जब मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैंने उससे कहा, डॉक्टर साहब मेरा चेकअप करें। तो वो समझने लगा कि एक तो ये फ्री दवाई लेगा, दूसरा ये मेरा एक्सरा भी जाया करवाएगा। उसने कहा, बेटा आप दवाई खाएं, आप दवाई खाएं, इतनी जल्दी दवाई असर नहीं करती, आप जाएं अगले हफ्ते आना। मैंने कहा, जी आप तो कह रहे थे अगले हफ्ते में मर जाऊंगा, तो मैं कैसे आऊंगा, आप मुझे चेक करें। वो अपने लड़के को जो उसके साथ हेल्पर था तो उससे कहने लगा, ओ यार कोई मुंडा जिदे मां प्यो नहीं मर गए, वो जिदे फेफड़े खत्म हो गए, यार एक्सरा कर दिया, दिल रखने लगे। और मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, और वो मुझे एक्सरा रूम में लेकर गया, उसने मेरा एक्सरा लिया, वहां पे उसने बाहर भेजा, वो एक्स्ट्रा डेवलप करके लाया। जब वो एक्स्ट्रा डेवलप करके लाया, उसने डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने उसको अपने फ्रेम पे लगा के जब लाइट जलाई तो उसके अंदर ब्रांड न्यू फेफड़े थे, दो ब्रांड न्यू फेफड़े, नए, पुराने नहीं। उसने मुझे देखा, कहता है, यार ये इसके एक्सरे नहीं है, ये किसी और के एक्सरे तुम ले आओ। उसने कहा, डॉक्टर साहब ये पहले ही पेशेंट है, आज इसका हमने एक्सरा किया और कोई एक्सरा है ही नहीं। उसने कहा, अच्छा, कहना लेट भाई। मैं कहा, जी क्यों? कहना मैं तेरा अल्ट्रासाउंड भी करना, मैं चेक करना है कि तेरी आंद्रा ठीक हुई है कि नहीं। उसने जब मुझे लिटाया, मेरे पेट पे जेल लगाया, उसने अल्ट्रासाउंड किया तो मेरी आंतें भी बिल्कुल ठीक थी। हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी खिदमत का 21वां साल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे वो बीमारी कभी दोबारा नहीं हुई। आमीन। क्योंकि यीशु जो शिफा देता है परफेक्ट होती है। आमीन। लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। अब यीशु ने तो अपना काम मेरी जिंदगी में कर दिया, अब मुझ पे भी तो कोई जिम्मेदारी थी। लिखा है, अंधे ने जब शिफा पाई तो राह में यीशु के पीछे हो लिया। हमें जो भी बरकत मिल जाए, हम यीशु को नहीं देखते फिर दोबारा, हम अपनी राह पकड़ते हैं। जब मुश्किल आती है तो मैंने देखा लोग चर्च में आते हैं, एक्सीडेंट हो जाए चर्च में आ गए, बदरू आ गई चर्च में आ गए, कारोबार खत्म हो गया पादरियों से दुआ कराने के लिए चर्च में आ जाए। लेकिन अच्छे दिनों में आप कहां हैं बहनों भाइयों? जब आप पर मुश्किलात आएंगे, आप उसी वक्त खुदावंद के पास आएंगे। पौलुस तो कहता है, जिंदा रहना मेरे लिए है ही मसीह। तो मैंने आपको बताया, मैं गाता था, तो मैं जब दुआ कर रहा था, खुदावंद ने मुझसे कहा, एक आयत मैंने पढ़ी मत्ती की इंजील में, एक ही चश्मे में से दो किस्म का पानी नहीं निकल सकता। मैंने कहा, खुदावंद इसका क्या मतलब है? खुदा ने कहा, इसका मतलब ये है कि तुम तू गजला गाएगा कि गीत गाएगा। मैं चक्कर में पड़ गया, मैं कहा गजला तो पैसे मिलते, तो मेरी तो सारी रोजी रोटी चली जाएगी। खुदा ने कहा, बेटा फैसला कर, मैं तुझे ये नहीं पूछ रहा कि तेरी रोजी रोटी कहां से आएगी, इसका जिम्मेदार मैं हूं। तू गीत गाएगा आज के बाद या गजलें गाएगा? मैं कहा, खुदा मैं गीत गाऊंगा। हालेलुया। और उसके बाद 21 साल हो गए, मैंने आज तक वो गाना नहीं गाया दोबारा। मुझे बड़ी ऑफर्स हुई हैं, लेकिन शुक्र है मैंने नहीं गाया, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह। आपको पता है, आज से 30-40 साल पहले मसीहियों का बड़ा म्यार होता था। लोग मसीही मुलाजमीन को अपने घर में रखते थे और वो कहते थे बड़े ईमानदार होते हैं। लेकिन आज मसीहियों का वो म्यार नहीं है। जो लोग हंसामे हैं वो प्याज चुराते हैं, थोम अदरक चुरा के लाते हैं। और एक भाई से मैंने कहा कि भाई आप तौबा कर लें। कहता, सॉरी भाई साहब, मैं तौबा नहीं कर सकता। मैं क्यों? कहता, जी असल च मैं एक जगह तो कोठी च काम करना, वो तनख्वाह बड़ी थोड़ी देंदे ने, तो फिर प्याज वगैरह मैं चोरी कर लिया, और अगर मैंने तौबा कर ली तो फिर प्याज कैसे चोरी करूंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। सोचें
प्याज की खातिर वो अपने आप को अपनी हलाकत के अंदर डालना चाहता है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। इसका मतलब ये है जब जिंदा रहना हमारे लिए मसीह है तो फिर हमने हर एक वो काम करना है जो खुदावंद को पसंद है। मैं फिल्में बहुत देखता था सिनेमा में जाके, क्योंकि माँ बाप तो मेरे थे नहीं। मैं सुबह का शाम सिनेमा हॉल में घुसा रहता, जॉब फारिग होनी और 6 से 9, 9 से 12 जाके फिल्में देखनी, हर किस्म की फिल्म, पाकिस्तानी, इंडियन, इंग्लिश सब। लेकिन जब मैंने तौबा की, खुदावंद ने कहा पुत्र हूं तू फिल्मा ना देखा कर, हूं तू मेरा कलाम पढ़िया कर। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। एक छोटा बच्चा खुदा का कलाम सुन रहा था टीवी पर, जैसे आइजक टीवी चलता है, आपने देखा होगा घरों में अक्सर लगा रहता है, बरकत टीवी लगा रहता है, प्रेस टीवी लगा रहता है। तो वो बच्चा कलाम सुन रहा था, उस बच्चे ने तौबा कर ली कलाम सुन। 12 साल का बच्चा था। तौबा उसने क्या की कि मेरी माँ मुझे 1 किलो चावल लेने के लिए भेजती, मैं 3 पाव लेके आता हूँ और 1 पाव के पैसे अपनी जेब में डाल लेता हूँ ताकि वीडियो गेम खेलूं। मेरी माँ मुझे पैसे देती है कि अपने छोटे भाई को भी चीज लेकर देना, मैं उसको 1 रुपए की चीज लेकर देता हूँ, 4 रुपए अपनी जेब में डाल लेता हूँ ताकि मैं अपनी राशि करूं। उस बच्चे का दिल टूट गया खुदा का कलाम सुनने के बाद और उसने तौबा की। और जब शाम हुई तो वो अपनी माँ के साथ खाना खाने के लिए बैठा अपने घर वालों के साथ, तो अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मी जी आपने क्या पकाया है। उसकी माँ कहने लगी पुत्र आलू फलियां पकी हैं। उसने कहा आलू फलियां यीशु को पसंद है। सुने जरा ये बात, कहता क्या आलू फलियां यीशु को पसंद हैं। उसकी माँ कहने लगी ये कैसा बेवकूफाना सवाल है, आलू फलियों का यीशु के साथ क्या ताल्लुक है। उसने कहा नहीं, आप मुझे बताएं कि यीशु को आलू फलियां पसंद हैं या नहीं है। उसने कहा हाँ हाँ पसंद है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है। उससे कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज दोपहर को मैंने तौबा की है, यीशु को मैंने अपने दिल में बुलाया है, यीशु मेरे दिल में रहता है। अगर मैंने आलू फलियां खा ली और वो यीशु को पसंद ना हुई तो जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। जिंदा रहना मेरे लिए हम जो कुछ खा पी रहे हैं समझदार हो तुसी, इशारा ही काफी है। हम जो कुछ पी रहे हैं क्या उससे मसीह का जलाल जाहिर होता है। हम जो कुछ खा रहे हैं क्या उससे मसीह का जलाल जाहिर होता है। क्या हम जो कुछ देख रहे हैं उससे मसीह का जलाल जाहिर होता है। क्या जो कुछ हम सुन रहे हैं उससे मसीह का जलाल जाहिर होता है। क्या जो कुछ हम बोल रहे हैं उससे मसीह का जलाल जाहिर होता है। एक भाई मुझे कहने लगा कि देखने से क्या होता है। मैंने कहा भाई देखने से तो हवा फंस गई थी, देखने से तो लूत की बीवी नमक का सुतून बन गई थी, देखने से ही तो उस अपाहिज शख्स ने पतरस और यूहन्ना से शिफा पा ली थी, देखने ही से तो पलूस ने उस शख्स को जब देखा लूसरा के मकाम पर, वो शख्स लंगड़ा था, लिखा है पलूस ने उसको देखा, उसके अंदर शिफा पाने का ईमान है। उसने कहा नौजवान अपने कदमों पे खड़ा हो जा, और उठ के खड़ा हो गया। देखने से बड़ा कुछ होता है। आज हम जो कुछ भी नजर आता है देख लेते हैं। क्या आपकी आंखें मसीह को दी हुई आंखें नहीं। क्या जब आप किसी बहन को जाते हुए देखते हैं आप अपनी निगाहें नीचे कर लेते हैं, नहीं ये मेरी बहन है, मेरी आंखें मसीह की आंखें। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे खुदा के नाम की इंसल्ट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई बहन चुगली करे दूसरे की, उसे कहे बहन रहम दो, हम सब गुनाहगार हैं। हम कौन से अच्छे हैं जो हम दूसरों की अदालत करने बैठे हैं। खुदा से माफी मांगे और दुआ करें। आओ अगर उस बहन के अंदर इतनी खामियां हैं तो हम उससे उसके लिए मिलकर दुआ कर लेते हैं। करता कोई ऐसे। मैं ये हमेशा कहता हूं आप किसी को बताएं कि फलाने की बेटी अपने घर में बड़ी सुखी है, बहुत अच्छा है, उसका शौहर, उसके ससुराली इतने खुश है उससे कि उसको अपनी बेटियों से भी बढ़कर इज्जत देते हैं। हम इस बात के ऊपर कोई कान ही नहीं धरते। लेकिन अगर कहें फलाने दी धी बड़ी औखी, सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। कहता गे दस अगे की, क्योंकि अच्छी बात हमारे लिए कोई बात ही नहीं, बुरी बात हमारे लिए खबर है, वो हम सुनना चाहते हैं। हमने अपने कान किसको दे रखे हैं, हमने अपना मुंह किसको दे रखा है। बेयकीनी की बातें, गालियां हम बकते हैं, हर एक बुरी चीज हमारी जिंदगी के अंदर पाई जाती है। क्या हमने अपना आप अब तक खुदावंद को दिया है या हम महज चर्च आके ही अपने आप को मसीही समझ रहे हैं। आपको ये बात समझ आई। जिंदा रहना मेरे लिए क्या है, जी बोले, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह। आज से आप जो कुछ करें सोचें कि मैं मसीह के लिए करूंगा, लेकिन आप उस वक्त करेंगे जब आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देंगे। आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करेंगे। नई पैदाइश क्या है, जब आप कहते हैं ना कि खुदावंद मेरे दिल में आ, तो खुदावंद आपके अंदर एक नई फितरत पैदा कर देता है। इसको कहते हैं नई पैदाइश। नई पैदाइश क्या है, ये नई फितरत जब आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर आती है, ये हमें तब्दील करती है, ये हमें गुनाह से दूर रहने पर उकसाती है। लेकिन वो लोग जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए वो इरादा करते हैं। इरादा क्या करते हैं, कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। ये इरादा है, इंसानी इरादा। मैंने एक भाई की जेब में 3 सिगरेट देखे। मैं कहा भाईजान 3 सिगरेट। पहले उसके जेब में डब्बी होती थी,
कहना जी घटाए हुए ने, मैं छड़ रहा, थोड़े कीते ने, पहले मैं 5 कीते सन, मैं 3 कीते ने, तो हुण मैं कल तो 1 पीना, उसके बाद पीना ही। ये इरादा, ये नई पैदाइश नहीं है, नई पैदाइश कुछ और है। मैं इसका फर्क आपको बताना चाहता हूं। जो शख्स नए सिरे से पैदा हो जाता है वो कैसे गुनाह पर गालिब आता है, और जो शख्स नए सिरे से पैदा नहीं होता वो गुनाह को छोड़ने का इरादा तो करता है लेकिन गुनाह उससे छूटता नहीं। हमारे यहाँ पे एक मुहावरा है, मैं तो कंबल नूं छड़ना चाहना, कंबल नहीं मैनू छड़ना। हम गुनाह से बचना तो चाहते हैं लेकिन चूंकि हमारी फितरत ही गंदी है, हमें नई फितरत है ही नहीं, मसीह की फितरत है ही नहीं, मसीह की अकल है ही नहीं, हम कैसे गुनाह को छोड़ेंगे। अच्छा, एक सिगरेट पे आ गया, उसके बाद अगले दिन उसने छोड़ दिया वाकई सिगरेट। तीसरे दिन वो अपने दोस्तों में गया, वो सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने कहा पीनी पा, सोचने लगा, कहता यार वैसे चल मैं कड़ी अपने पल्ले लेके दे यार, उसे ले लिया, सिगरेट लगा लिया और पी लिया। आते हुए खोखे से फिर डब्बी ले ली। छोड़ने का इरादा तो किया लेकिन छोड़ ना सका। लेकिन हुआ क्या, उसी शख्स ने जब मसीह को कबूल कर लिया, खुदावंद उसके अंदर आ गया, हालेलुया, खुदावंद ने उसको अपने कंट्रोल में लिया। और जब उसको इस चीज का एहसास हुआ कि सिगरेट पीनी अच्छी चीज नहीं, शराब पीनी अच्छी चीज नहीं, गालियां बकना अच्छी चीज नहीं, दूसरों की लड़ाइयां करवाना अच्छी चीज नहीं, दूसरों की ऐबजोई सुनना या ऐबजोई करना बुरी बात है, तो उसने घुटने टेके खुदावंद से कहा, खुदावंद ये मुझसे तो नहीं छूट सकती, तू मेरी मदद कर। खुदावंद ने आसानी से उसको फजल दे दिया। मैं जब सिनेमा के आगे से गुजरता था तो मैं आप ही टिकट ले लेता, चाहे मैंने देखनी होती थी या नहीं देखनी, क्योंकि मैं असील था। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने आका के सामने खड़ा हो जाए कि मैं नीचे करना। जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और वो लोग जो मसीह के बगैर हैं वो गुनाह के गुलाम हैं। और गुलाम की इतनी औकात नहीं कि वो अपने आका शैतान के आगे खड़ा होकर कहे कि मैंने तेरी बात नहीं मानी। लेकिन वो शख्स जो मसीह के खून से जुड़ा है वो शैतान के सामने खड़ा हो जाता है, वो कहता है तू जो मर्जी कर ले, मैं तेरी बात मानने का नहीं, क्योंकि खुदा का रूह मेरे अंदर बसता है। हालेलुया। पौलुस कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। पौलुस के लिए जिंदा रहना गाड़ी लेना नहीं था, कोठी बनाना नहीं था, बंगला बनाना नहीं था, बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करना नहीं था, डॉलर कमाने नहीं थे, बैंकों के अंदर डॉलर भरना नहीं था, बड़ा आदमी बनना नहीं था, बल्कि मसीह के लिए जीना था, अपनी जिंदगी से मसीह का जुलाल जाहिर करना था, खुदा की ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी से दूसरों की जिंदगी के अंदर रिलीज करना था। और हुआ क्या, पौलुस ने लाखों लाख लोगों को मसीह के लिए विन कर दिया। आमीन। जो शख्स इस जमीन पर खुदावंद के लिए जीता है, जब वो आसमान पर जाता है तो ये बड़ी नफे की बात है। दुनिया में बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं जो अपने अजीजों के मरने पर रोती नहीं, वो खुशी मनाती हैं। वो ऐसे डेड बॉडी को रखते हैं और सब गीत गाते हैं, खुशी के नारे मारते हैं। वो कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि हमारा एक भाई या हमारी एक बहन हमसे पहले खुदावंद के जलाल में दाखिल हो गया। आमीन। वो रोते पड़ते नहीं, वो हुण की होएगा, हुण की करांगे, मारे गए, लुटे गए, हुण कुछ पल्ले ही नहीं रह गया। कई गीत गाते इस तरह के, ए खानदान एक दरख्त है और टाण ही टूट गई, हुण कुछ नहीं बाकी रहा, और लोग रो रहे हैं, और मारो भाई। तसल्ली की बात यह है वो जो खुदावंद में मुआ है वो तो नफे की हालत में है, और जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं वो यतीम नहीं होते। कभी सुन लें, बहन की जो बेटियां हैं, जो उनके बेटे हैं, जो उनकी फैमिली है, वो ये सुन लें, आप यतीम नहीं हैं, क्योंकि जो बाप आपकी मां का था, आसमानी बाप, वो आपका भी बाप है, और उसने आपको संभाल रखा है चारों तरफ से। वो आपको किसी भी मामले में पीछे नहीं रहने देगा। हालेलुया। आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। ज़बूर 20 में हम गाते हैं, पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा, दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा आप, अपनी जनाबे पाक तुम याकूब दा खुदा। जिसका ध्यान खुदा पर है, जिसने अपनी आंखें खुदा पर लगा रखी हैं, उसको कमी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अपने वालिद साहब के जिंदा रहते हुए मैं बहुत ऐसे वक्त मैंने देखे कि मुझे भूखा रहना पड़ा, बहुत से ऐसे वक्त मैंने देखे कि मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। लेकिन जब मेरे वालिदैन इस जमीन से कूच कर गए, लोग कहते थे ये कैसे जिएंगे बच्चे, इनकी रोटी कैसे पूरी होगी। मेरी माँ कहती थी कि जब मैं मर गई तो मेरी बेटी भी मेरे साथ ही मर जाएगी, क्योंकि मेरी बहन तो ना कपड़े चेंज कर सकती थी, ना खुद रोटी खा सकती थी, ना उठ के एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती थी। तो मेरी माँ का ये तकिया कलाम बन गया था कि जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन मेरी बेटी ने भी मर जाना है, कौन इसको संभालेगा। लेकिन जब मेरी माँ मरी सन 98 में, उसके मरने के 11 साल बाद तक मेरी बहन जिंदा रही, और उसको छोटे छोटे बच्चे संभालने लगे। खुदा ने बच्चों को इतनी अकल दे दी कि बच्चे उसके कपड़े चेंज कर लेते थे, उसको खाना खिला देते थे, उसको नहला लेते। खुदा ने हमें बेस्ट रोटी दी। जब से मैं खुदा के पास आया हूँ मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं किसी दिन भी भूखा सोया हूँ। मुझे हर रोज बेहतरीन पोशाक मिलती है, हर रोज बेहतरीन खाना मिलता है, मेरी जिंदगी की सारी जरूरतें खुदा पूरी करता है। आमीन। जिंदा रहना मेरे लिए और आपके लिए मसीह होना चाहिए।
وہ لوگ جو مسیح کے لیے جیتے ہیں وہ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں. آپ ایمبیسڈرز ہیں, سفیر ہیں اس زمین پر, یسوع مسیح کے سفیر ہیں. جہاں پر آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ یہ سمجھ کر انٹر ہوں گیٹ کے اندر, میں یسوع کا سفیر ہوں. آج میں نے یہاں پر ایسے کام کرنا کہ کوئی مزدور ایسا کام نہیں کرے گا, میں یسوع کا جلال ظاہر کروں. ہاللیلویا. میں آج جس جگہ پر کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں, میں اپنے کریکٹر سے یہ دکھاؤں گی کہ میں مسیحی بہن ہوں. آمین. اور لوگ خوش ہوں گے, لوگ کہیں گے بہن آپ کون ہیں, اور پھر ہمیں یہ بتانے کا موقع مل جائے گا. لیکن اگر آپ چوری کر لیں گے, ٹماٹر پیاز چوری کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے مالکوں کی لے جائیں گے, تو پھر لوگ کہیں گے مسیحی لوگ ایماندار نہیں ہیں. میرا آپ سے اس سوال ہے, آج سے پہلے کیا آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ زندہ رہنا آپ کے لیے کیا ہے؟ کچھ لوگ جب ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ یہاں سے کوچ کریں گے آپ کہاں جائیں گے, وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیری نہیں. لیکن وہ جو یسوع کے خون سے دھل چکا ہے, جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کہاں جائیں گے, میں آپ سے پوچھوں ابھی اس عبادت کے بعد آپ کہاں جائیں گے, تو سکھو گے کہاں جاؤں گے اور کتنے جانا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک ایماندار کے پاس اتنی دلیری ہوتی ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ کہاں جائیں گے, وہ کہے گا میں آسمان پہ جاؤں گا جہاں پر یسوع ہے. ہاللیلویا. اور آسمان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یسوع ہر وقت وہاں پر آپ کے ساتھ ہو. آمین. یہاں تو ہم ترستے ہیں, او جب خدا کی زبری آتی لوگ بڑے پھر خوش ہو جاتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, کیونکہ آسمان کا ایک چھوٹا سا نظارہ ہمیں زمین پر دکھایا جاتا ہے. لیکن تصور کریں وہاں پر یسوع آپ کو فیس ٹو فیس ملے گا. آپ پولس سے ملیں گے, پطرس سے ملیں گے, خدا کے لوگوں سے ملیں گے, داؤد سے ملیں گے. بہت سے عزیز جو مسیح میں رہ کر سو گئے وہ آپ کو آسمان پر ملیں گے. اور بہت سی بہنیں سونے کی بڑی شوقین ہوتی ہیں. سونا سونا کانچ پان والا سونا نہیں, وہ بیڈ دے سونا والی گل نہیں کرتے. سونا, اور سونا بڑا مہنگا ہو گیا ان دنوں. لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ آسمان پر سونے کی سڑکیں, اس وقت اتنا سا سونا کان میں ڈال کے آپ خوش نہیں ہوں گے, آپ سونے کی سڑکوں پہ چلیں گے. ہاللیلویا. وہاں پر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے, کوئی گنجا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا سوٹ بڑا خوبصورت ہے اور کسی کا پھٹا ہوگا. وہاں پر سب کی پوشاک ایک جیسی, کیونکہ یسوع اپنے ہاتھ سے سب کو پوشاک دے گا. ہاللیلویا. کیا آپ ایسی جگہ نہیں جانا چاہتے جہاں 1122 کی کوئی گاڑی نہیں آتی؟ جی, وہاں پر 1122 کی کوئی گاڑی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ حادثہ ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پر ہسپتال کوئی نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہاں پہ بیماری کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا. وہاں پر تھانہ کوئی نہیں اس لیے کیونکہ وہاں پہ مجرم ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ ہر ایک یسوع مسیح کے خون سے آزاد کر دیا گیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہاں پر ہر ایک آپ کو وہ ملے گا جو یسوع کے خون سے, برے کے خون سے دھل چکا ہے, آزاد ہے. ہاللیلویا. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے آپ نے بہت سے سال اسی طرح گزار دی ہوں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں گا اور میں اس کلام کو ختم کروں گا. ایک بچہ ایک جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا. اس کی ماں نے منع کیا, ان کے گاؤں کے ساتھ ہی جنگل تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تم جنگل میں نہ جایا کرو, وہاں پر خونخوار جانور بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس بچے کے دل میں تجسس تھا کہ میں جا کے دیکھوں کہ اس جنگل میں ہے کیا. اور وہ دوستوں کو ڈاج کرا کے وہ خود جنگل میں آگے چلا گیا. اور جب وہ آگے گیا تو وہاں پر اس نے درخت کے نیچے ایک تھیلا دیکھا. اس تھیلے کے اندر بڑے جوہرات تھے, چمکدار ہیرے تھے. وہ بچہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا یہ پتہ نہیں کیسے پتھر ہے, بڑے چمکدار ہیں. اور بچے آپ کو پتا ہے چمکدار چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اس نے بیگ اٹھایا, ٹانگ لیا, اور جب وہ واپس آ رہا تھا اس نے دیکھا کوا بیٹھا ہوا ہے. اس نے پتھر نکالا, کوے کو مارا. ایک پتھر نکالا, چڑیا کو مارا. ایک پتھر نکالا, کچھوے کی کھال پہ مارا. ایک اس نے پتھر نکالا, کسی جانور کو مارا, درخت کو مارا. نشانے باندھتا 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 وہ جنگل سے باہر نکل آیا. لیکن جب وہ باہر آیا تو اس کا تھیلا آلموسٹ خالی ہو چکا تھا, اس میں تھوڑے سے پتھر باقی تھے. جب وہ گھر پہنچا تو اس کا باپ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا جو کہ جوہری تھا, جولر تھا. تو اس نے آگے تھیلا رکھ دیا, اور جیسے بچے عام طور پہ اسکول کا بیگ پھینک کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, اس نے بھی وہ بیگ پھینکا اور وہ دوسرے کام میں چلا گیا. اس کے انکل نے, جو اس کے باپ کا دوست تھا, اس نے کہا بیٹا بات سنو, یہ بیگ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا انکل جی میں تو جنگل میں گیا تھا اور وہاں سے مجھے وہ ملا. اس نے کہا تمہیں پتا یہ کیا ہے؟ اس نے جب اس کو دیکھا اس نے کہا یہ تو انتہائی نایاب ہیرے ہیں, اگر تم نے ایک بھی بیچ دیا تو تمہارا گھر بھی بن جائے گا, کاروبار بھی سمجھ جائے گا. اوہ کمال ہو گیا. تو وہ بچہ بجائے خوش ہونے کا رونے لگا. تو وہ انکل اس کا پوچھنے لگا, اس نے کہا بیٹا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اس کا باپ بھی خوش ہوا, لیکن وہ بچہ رونے لگا. اس نے کہا یہ تو اتنی خوشی کی بات بتائیے, رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیگ تو بھرا ہوا, لیکن میں نے سارے ہیرے ضائع کر دیے. آپ کے بھی جتنے سال گزر گئے ہیں یہ ان قیمتی ہیروں کی طرح تھے جو ہم نے سو کے گزار دیے, شراب پی کے گزار دیے, لڑ جھگڑ کے گزار دیے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے گزار دیے, لوگوں پہ مٹی پھینکتے ہوئے گزار دیے. کہنا سی مٹی پاتی اسی نہیں ملتے انہوں نے ذکر بھی نہ کرو ساڈے سامنے. ہم نے اس طرح سی زندگی گزاری.
लेकिन जो कुछ बाकी है, क्या आप आज उसके बारे में कुछ सोचेंगे? हो सकता है आपके 5 साल बाकी हो, 2 साल बाकी हो, 20 साल बाकी हो, 30 साल बाकी हो। आप उसको किसके लिए गुजारेंगे? यीशु के लिए। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। अपनी आंखों को बंद कीजिए और कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। आप कहां पर खड़े हैं? अगर अभी तक आप अपने आप को जस्ट मसीही समझते रहे हैं, तो मैं आपको आज उभारना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए। अपना दिल खुदावंद के लिए खोलिए, उससे कहें खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैं गुनाहगार हूं, मैंने तेरा दिल दुखाया है, मैंने तेरी सलीबी मौत को आज तक रद्द किया और मैं अपने हदियों से और अपनी दैयतियों से, डबल रोटियों से तुझे पसंद आने की कोशिश करता रहा, लेकिन तू चाहता है कि मैं तेरे बेटे यीशु को कबूल करूं, उससे अपनी जिंदगी का बादशाह बनाऊं। आज आप अपने लिए सोचिए और जब इस पंडाल से आप बाहर निकलें तो अपने लिए एक बेहतरीन फैसला करके जाइए। नए इंसान बनकर बाहर निकलिए, नए मखलूक बनकर बाहर निकलिए। जैसे ज़कई यीशु को देखने के बाद पहले के जैसा न रहा, उसने कहा अगर मैंने किसी का ना हक लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापस करता हूं। यीशु ने कहा आज इस घर में निजात आई, आज इस घर में निजात आई। मेरे चीजों बदल जाइए, तब्दील हो जाइए, यीशु के खून से धुल जाइए, गुनाहों को अपनी जिंदगी से दूर कीजिए, पाकरू को मांग लीजिए, खुदा को मांग लीजिए, उसके जलाल को मांग लीजिए, उसकी हजूरी को मांग लीजिए, उसकी कुदरत को मांग लीजिए, उसके मसा को मांग लीजिए। अपनी जिंदगी में शैतान को नो कहिए और खुदावंद को आज शाम यस कर दीजिए। हालेलुया। ये पल, ये शाम आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ कीजिए। मैं बारिश साहब को सामने बुलाऊंगा, वो आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे।